गुड प्रिया मॉर्निंग प्रिया बेटा। पूनम गुड मॉर्निंग सरिता जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। गुड मॉर्निंग प्रिया। मैं एक बार मीरा, good morning, everyone. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विजय सर। गुड मॉर्निंग सरिता गुड जी, मॉर्निंग विजय जी। everybody. भारती गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। काल आंटी Good morning, गुड Shweta. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजय भारती, सर। morning, अरुणा Aruna. गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग। आज तो गुड भारती मॉर्निंग काम दीनू। कर रही गुड है। मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग विजय जी। गुड Good मॉर्निंग morning. गुड मॉर्निंग गुड भारती मॉर्निंग। सबको भारती जी। ब्रेकफास्ट पे बुला रही है। ओह वाओ। बेला गुड मॉर्निंग। भैया इतनी देर में मॉर्निंग का वो कर दूं, मॉर्निंग की प्रेयर कर दूं इतनी देर? हाँ जी मैम, बिल्कुल ना, कर दीजिए मैम। आप इतनी देर को होस्ट बना दीजिए, मैं इतनी देर मॉर्निंग प्रेयर कर देती हूँ, है ना? ओके, श्योर मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज क्लोज योर आईज एंड डीप ब्रीथ 3-4 times. Today is the day of completion, and I give thanks for this perfect day. Miracles follow miracles, and wonders overflow in my life. Today is the day of completion, and I give thanks for this perfect, amazing day. Miracles follow miracles, and wonders overflow in my life. Today is the day of completion. I give thanks for this perfect day. Miracles follow miracles, and wonders overflow in my life. Thank you, universe, for being my best friend, my guide, my cheerleader, and always protecting me. Thank you, universe, for my amazing health. Thank you, universe, for avalanches of wealth coming into my life. Thank you, universe. All my relationships are very fulfilling, and enriching. Thank you, universe, for your protection and blessing throughout the day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you, Priya. आपका हो गया होगा ना? थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई गेस हो गया है। Thank you so हाँ जी, much. प्रिया। Thank you, Poonam Thank you. ma'am. Forever grateful for to catch up with the thing. And I really have to look into the phone and everything that why it didn't happen today morning, but it's okay. So it's okay to carry on. I welcome each and every one of you on behalf of Honorable Dr. Deepti Verma. Thank you so much for attending the session every day. Each and every one of you, whether you are joining from the YouTube or joining from the Zoom, whoever you are, wherever you are, your life is definitely going to change because you are into this wonderful journey of manifesting the wonderful life for you. So this life will not just be wonderful, but we will always be also be evolving into a better human being, right? Every day, in every way, we are getting better and better. So with this, we start today's session. And today's session has always been this magnificent because the concluding chapters are about telling us about the gist of the whole magic book, the whole magical journey that we are enjoying, that we are being an integral part of. Each and every one, each and every chapter is such an important chapter that we have to understand the significance of the chapter. And Rhonda Byrne tells us the significance of the chapters and the challenges that come in our life. They continuously push us towards doing the practices.
because now we have got the genie in our hand that yes, we have to go forward with the practices now. So gratitude is the main thing जो कि रोंडा बर्न ने हमें जिस पर emphasize करती हैं, जिस पर सभी के सभी thinkers, philosophers, सभी के सभी ने gratitude पर बहुत focus किया है. Be it any religion, be it any wonderful scientist, be it any corporate person, be it any entrepreneur, everyone has told us loudly about the significance of gratitude in our life. Gratitude enhances our mental health. Gratitude de-stresses us, है ना? हमारी mental health को ठीक करती है, हमारे को de-stress करती है. Everything in our body is due to the production of various chemicals. हम हंसते भी हैं तो किसी केमिकल के कारण, हम रोते भी हैं तो किसी केमिकल के कारण, हमें गुदगुदी होती है या हमें भूख लगती है या whatever feelings we have, it is all because of certain chemicals in our body. So chemicals are always there. Our body is completely a chemistry lab sort of thing. हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है. So जो ये chemistry lab है, इस सारे जो functions है, सारे के सारे chemical reactions हैं, उनको करवाने के लिए gratitude plays as a catalyst. Catalyst of gratitude. Catalyst का मतलब वो होता है कि it is always there and it induces it makes sure that everything runs out smoothly. किसी भी चीज में ना, आपकी कोई भी केमिकल फंक्शन हो रहा होता है ना, उसमें एक कैटलिस्ट होता है जिसके कारण वो जो रिएक्शन है बहुत अच्छे से होता है. तो जिस तरह से केमिस्ट्री के लैब में रिएक्शंस किसी ना किसी कैटलिस्ट की तरह होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी की जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल फैक्ट्री है, ग्रैटिट्यूड के इंग्रेडिएंट के कारण हमारी जो लाइफ में सारे के सारे जो रेल्म है, सारे के सारे जो डोमेन्स है, वो परफेक्टली फंक्शन करता है. बी इट आवर मेंटल हेल्थ, be it our physical health, be it our spiritual health, be it the thing of our financial health. Everything, every relationship is getting, better and better just because of practicing gratitude. We are becoming a compassionate person. अभी हमें समझ में आता है किसी ने अगर हमारे साथ कोई बुरा भी किया है तो अभी we bless him because we see our reflection in him, right? That person. But what Rhonda Byrne says कि आपको ये पता तब चलेगा, आपको पता चल जा चुका है, but when you stop using it, or when you are reluctant to use it, or when you are taking things for granted and it comes on its own, तब this magic tries to evaporate from your system, your life. We do not want that. Because of that only हम लोग मैजिक बुक की जर्नी को बार शुरू करते हैं और ये हमारे लाइफ में हमेशा चलती रहेगी. सो ये वाला जो चैप्टर है आज का जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है. इसमें हम लोग मेंटल के बारे में पढ़ेंगे कि मेंटल रिवायरिंग हम लोग कैसे करते हैं. सी ऑल कैरिंग आवर पास्ट, सब हमारे एक किसी का बहुत अच्छा पास्ट रहा होता, सभी का इट्स ऑलवेज अ मिक्सचर, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ नेगेटिव बातें हो जाती हैं हमारे साथ, बट इट इज ऑलवेज ग्रेविटेटेड टू काउंटर द नेगेटिव थिंग्स दैट हैपेंड. सो जो ये थिंग्स हमारे साथ बचपन में कभी हुई है, हम क्या करते हैं ना, हम उसको काउंट करने लग पड़ते हैं. तो उसके कारण ना देयर इज समथिंग दैट वी ड्वेल इन लैक और चैलेंजेस कम इन आवर लाइफ. क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको डिप्रेस फील कर रहे हो या किसी तरह सिकनेस है या कुछ अनहैप्पी हो आप, तब यू विल गो एंड हैव यू गेट दिस इंस्टिंक्ट की तरह यू क्रेव फॉर जिससे आइसक्रीम है ना, वो आइसक्रीम जब आप खाते हो आपको डोपामीन का मिल जाता है. लेकिन जैसे ही आपने वो आइसक्रीम खा लिया, फिर वो डोपामीन फिर से बैठ जाता है आपका, फिर अगेन आपको. तो क्या हो रहा था ना कि वेन एवर वी आर डूइंग दिस थिंग, डोपामीन जब हमारा रिलीज हो रहा है बॉडी में, तो डोपामीन रिलीज करवाने के और भी तरीके होते हैं अदर देन ग्रेटिट्यूड. जैसे कि हम लोगों को कोई इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए वी पॉप इन जैसे चिप्स और कुछ भी चॉकलेट, कुछ भी आइसक्रीम टाइप ऑफ थिंग. बट उससे क्या होता है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो चीज खत्म होगी वैसे ही आपका लेवल फिर से डाउन हो जाएगा. अगेन यू विल गो एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव योर, किचन में जाओगे, फ्रिज खोलोगे, ये खाना है वो खाना है, बिकॉज स्ट्रेस ईटिंग होती है. वैसे अगर वो स्ट्रेस ईटिंग नहीं होगी, यू विल सल्क इनटू द सैडनेस एंड ऑल. But gratitude is the thing which keeps you pushing. It will just not release the dopamine in your body. Dopamine के साथ साथ वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है आपकी बॉडी में. आपकी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं. आपको स्ट्रेस हुआ, आप वॉक करने गए, वॉक करने के साथ साथ आप घर के अंदर भी जब वॉक कर रहे हो, यू आर मूविंग एंड सेइंग थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू,
Thank you, universe. I love you. Whenever you say this, you combine that energy of thank you with your movement, तो आपके एंडोर्फिन रिलीज हो गए. अब जब आपके एंडोर्फिन रिलीज हो गए तो आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर वो पॉजिटिव हैप्पी हॉर्मोन्स का रश होने लग गया. तब आफ्टर लाइक दैट विल बी द मोमेंट जब आप क्रिएटर की कुर्सी में वापस से आ जाओगे, वापस से आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे. This is what gratitude does. This is what this beautiful practices of Rhonda Byrne that Rhonda Byrne has discussed in this magic does for us. This is the direction of our life that we have to go into this direction. हम लोग जब भी फॉलो करते हैं, आप देखिएगा, आप सेशंस हमारे अगर मिस हो जाते हैं कुछ दिन तक, तो हमारे अंदर ना वो वाली चीज रहती नहीं है. मतलब वी स्टार्ट डिपिंग डाउन वेरी सून, फ्रिक्वेंट हो जाते हैं डिप डाउन करना, है ना. तो ये सब तभी होता है जब हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं या वी आर नॉट अलाइंड विद द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस. सो इट इज अ मस्ट फॉर अस कि ये जो जीनी हमें मिला है, ये जो चिराग का जिन हमें मिला है, उसको हम लोग और भी होन करते रहें. जस्ट एज द वे दैट इफ यू आर अ टीचर, आपके टीचर्स, आप जब टीचर होते हो, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में वो ट्रेनिंग के एक्सरसाइजेस होते रहते हैं ना, कि ये वाला ट्रेनर आ रहा है, ये ट्रेनिंग के आपको शेड्यूल्स करते रहते हैं वो लोग कि हाँ ट्रेनिंग. तो उसी तरीके से आर माइंड, दिस इज आवर लाइफ, दैट इज जस्ट योर करियर. करियर के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, यू आर होनिंग योर स्किल्स एवरी डे. इन द सेम वे दीज बुक्स आर होनिंग आवर स्किल्स. दिस इज द लाइफ. ये लाइफ की बात है, ना सिर्फ आपके करियर की, बट आपके हेल्थ की भी बात है, आपके सारे रिश्तों की भी बात है, आपके फाइनेंसेस की भी बात है. बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी so much emphasize on practicing gratitude every moment of your life, because that is very very important for us. ये आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है वो स्मूथ तभी चलेगी अगर हम ग्रेटिट्यूड की सीढ़ी को पकड़कर चलते रहेंगे, है ना. जो मेंटल रिवायरिंग हो रही है हमारी, मेंटल रिवायरिंग यानी कि जो हमारे पास्ट की जो चीजें थी हमारे साथ में, कुछ खट्टी मीठी, कुछ कड़वी यादें भी हमारी होती हैं, कुछ अच्छी यादें भी होती हैं. रोंडा बर्न ने बताया था हम लोगों को डे नंबर 12 तक कि कैसे हम लोगों ने पास्ट में से अच्छी चीजों को काउंट करना है. वी वर वर्किंग ऑन आवर पास्ट, ओनली गुड थिंग्स, वी वर कलेक्टिंग द गुड थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, और जो नेगेटिव थिंग्स थे उनको हमने ट्रांसफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिसेस. Now Rhonda Byrne again is emphasizing on the fact that we have to rewire our mind completely, and in order to rewire our mind, the most important practice is the magic rock practice. तो मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो है वो हमारे जो दिमाग को, हमारे ब्रेन को रीवायर करती है. रीवायर कैसे? कि दिस प्रैक्टिस हैज बीन टोल्ड टू डू इन द एट नाइट जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप. तो जब हम लोग उस टाइम क्या होता है ना, हमारा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक्टिव होता है, और जब हमारा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक्टिव होता है, अगर तब हम लोग ये प्रेयर्स या तब हम लोग अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें कि सारा दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तो उससे क्या होता है ना, हमारी मेंटल रिवायरिंग होती जाती है. एंड जस्ट नॉट दैट, Rhonda Byrne tells us to count all those things that happened with you, the best things, अच्छी चीजों में से. देन उसके लिए, उसके बाद भी we prioritize them to count the bestest thing and we say thank you for that. अदरवाइज हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस टाइम पे, रात को सोने के टाइम पे, हम लोगों को सारे दिन की खराब खराब बातें याद आती थी. हम लोग हो सकता है कभी रो के सोते हो, रोने लग पड़ते हो, और देन वी वेंट टू स्लम्बर. ऐसा करने से ना सिर्फ वो रात हमारी, अगला दिन भी खराब हो जाता था. तो इट वॉज लाइक अ लूप, वी वर रनिंग इन टू दैट लूप ऑफ नेगेटिविटी. But now with the help of this magic rock practice, we are counting our blessings every day, है ना. रात को हम लोग अपने जो सारे दिन की जो ब्लेसिंग्स हैं, सारे दिन में हमारे साथ जो जो अच्छी चीजें हुई हैं, उसको हम लोग काउंट करके सोते हैं. तो क्या हो रहा है ना, हमारी नींद बहुत अच्छी आ रही है. तो ग्रेटिट्यूड improves your sleep cycle also, है ना. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट ग्रेटिट्यूड डज टू अस. तो आपकी स्लीप साइकिल आपका इंप्रूव होते ही आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, आपको काम करने की एनर्जी आ जाती है. योर बॉडी फ्लोट्स इनटू एनर्जी एंड वाइटैलिटी. आपको रात को कैसा भी फील हो रहा हो, सुबह उठते यू विल बी वेकिंग अप विद फ्रेश एनर्जी एंड यू विल बी स्टार्टिंग योर डे विद दिस वंडरफुल प्रेयर्स, राइट. सो दिस इज व्हाट ग्रेटिट्यूड डज टू अस. एंड रोंडा बर्न्स टेल्स अस कि मैजिक रॉक का खाली एक एप्लीकेशन नहीं है कि आप उसको रात को जो पकड़ के आप सो रहे हो, आप सारी की सारी बातों को याद करके, अच्छी अच्छी बातों को याद करके जो आप सो रहे हो, वो तो है ही. इसके अलावा भी मैजिक रॉक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. मैजिक रॉक इज जस्ट so significant for us that it symbolizes God.
आप देखो ना, आप जब हम लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द आइडल्स आर मेड अप ऑफ रॉक। तो जो वो रॉक है, वो रॉक क्या करता है ना, एक तो आपके सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज को हमारे वो अब्सॉर्ब कर लेता है एंड वाइब्रेट्स इन द पॉजिटिव एनर्जी। व्हाई? बिकॉज यू हैव स्टोर्ड ऑल योर पॉजिटिविटी इनटू इट। आपने तो उस रॉक को मैजिकल बनाया। वो तो एक मामूली सा रास्ते से उठाया हुआ पत्थर था जिसको आपने जादुई बनाया है। तो जब जब आप उसको छुओगे, उसको टच करोगे, आपके माइंड जो है रिवायर हो जाएगा। खाली क्या करने के लिए? भाई मुझे अपने अच्छी चीजों को याद करना है ना। इट रिमाइंड्स यू दैट इफ इट इज केप्ट ऑन जस्ट बिसाइड योर बेड, इट रिमाइंड्स यू, नो आई डू नॉट हैव टू सल्क इनटू द नेगेटिविटी, आई हैव टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। जैसे कि वो सौम्या ने वो हम लोगों को ना वो गिफ्ट किया हुआ है, वो काउंटर होता है, तो उसको देखते ही याद आ जाता है कि नहीं हमने अपनी, जैसे मैं उसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ होपोनोपोनो करने के लिए, इजी रह जाता है ना, इट्स लाइक बीड्स, तो उसके लिए मेरा सबसे ज्यादा यूज होता है। तो उसको देखते ही मुझे याद आ जाता है कि मुझे ना वो 108 प्रेयर्स करनी है, होपोनोपोनो कर रहा है। तो इसी तरीके से मैजिक रॉक को अब ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे जब आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि नो नो नो, आई डू नॉट हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू डिप डाउन, आई हैव टू काउंट द गुड थिंग्स दैट हैपन टू मी ड्यूरिंग द डे, राइट? तो ऐसा करने से क्या होगा ना, ऐसा करने से आपका माइंड ऑटोमेटिकली विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, towards the positive things only. You do not have to do any effort. वो effortlessly होगा क्योंकि आपका दिमाग उस तरह से रिवायर हो चुका है। अब किसी भी छोटा सा पत्थर अगर आपके सामने जमीन पे आ गया, जैसे आप कहीं से रास्ते से चल रहे हो, छोटा सा पत्थर आ गया, तो आपका दिमाग ना ये जगह, हाँ ये मेरा मैजिक रॉक बन सकता है, आई कैन कलेक्ट इट और आई कैन गिफ्ट इट टू समवन, है ना। तो वो आपका दिमाग उसके साथ उस चीज के साथ रिवायर हो चुका है ना कि वाओ ये वाला रॉक है ना, ये अच्छा लगेगा हाथ में पकड़ के, इसको मैं ले जाती हूँ, किसी को गिफ्ट कर दूंगी, किसी को दे दूंगी। This is the kind of rewiring that our brain is, it is happening with the process of practicing magic rock. ऐसे एक दिन में नहीं होता है ये। जब आप इसको रिचुअली प्रैक्टिस करोगे, जो मामूली सा पत्थर था उसको आपने जादुई बना दिया है। आपकी ब्लेसिंग्स के कारण वो पत्थर आज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि आप उसको मुट्ठी में पकड़कर अगर आपने कोई विश मांगी, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। किड्स, मतलब चिल्ड्रन क्या करते हैं ना, अपने साथ अपने एग्जाम टाइम में भी लेकर जाते हैं उसको, और उनको फिर बहुत अच्छा फील होता है बिकॉज उस टाइम उनको एक अंदर से ना एक सेटिस्फैक्शन होता है कि नो, गॉड इज विद मी, universe is with me and I am his blessed child, universe is always there with me, I always have universes, it always has my back, you know. So ये चीजें हो जाती हैं जब आप मैजिक रॉक को अपने लाइफ के और चीजों के लिए भी, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हो। सो द रॉक दैट वाज जस्ट अ पेबल, एक छोटा सा पेबल था, हो सकता है उसके स्मूथ एजेस हो, बट नाउ इट हैज बिकम मैजिकल फॉर यू एंड नाउ इट हैज बिकम योर जीनी, यू कैन यूज इट एनी टाइम। आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, किसी फैमिली का मान लीजिए कोई वो हो, हमारी एक बहुत ही प्यारी सी दीदी है, तो वो क्या करते हैं ना, वो भी शी इज अ वंडरफुल इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। तो कोई भी फैमिली फ्यूड अगर मान लो कुछ हो जाए, कुछ इस तरह का चीज हो जाए, तो शी ऑलवेज मेक श्योर दैट शी इज कैरिंग हर मैजिक रॉक विद हर, एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड, आई वाज सो हैप्पी टू नो दिस कि शी ऑलवेज कैरीज मैजिक रॉक वेरेवर शी गोज। शी इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं वो, और जहां पर भी वो जाती हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाती हैं, उनका रॉक, मतलब ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेक के लिए, ब्रेक की बात नहीं है, किसी हॉलीडेज में जाने की बात नहीं कर रही हूँ, every day she is carrying her magic rock with her and she is seeing monumental changes into her life because of this. ये है मैजिक रॉक का सिग्निफिकेंस, और यही सिग्निफिकेंस हमें अभी रॉन्डाबन पढ़ के हमें बताएंगे कि किस किस तरह से हम मैजिक रॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैजिक रॉक है, जो आपके 5 तत्वों से बना हुआ है मैजिक रॉक, इट सिंबलाइजेस योर होल बॉडी। आप भी 5 तत्वों से बने हो, मैजिक रॉक भी 5 तत्वों से बना है, तो वो 5 तत्वों से बना हुआ पत्थर जो है वो हमारे लिए एक भगवान स्वरूप हो जाता है, राइट? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अभी, एंड प्लीज स्टार्ट रीडिंग whoever is reading today. I really do not remember who's reading. उन्नति कौन पढ़ रहा है आज? हाँ, ग्रुप में तो आया होगा ना। Priya, if nobody is reading, I can. Meetu is reading. Okay, Meetu ma'am is reading. चलो ठीक है। Your Yes, magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock
with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. Your magic dust. हाँ You can मैम, also एक सेकेंड मैम। तो हम लोगों को ये पता ही चला कि मैजिक रॉक इज द थिंग दैट रिमाइंड्स अस दैट समथिंग ऑलवेज इज हैपनिंग गुड टू अस, नो, ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन अ बेटर वे। तो अच्छी अच्छी चीजें उसको हमने याद किया मैजिक रॉक के साथ। सो दिस प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर अस। हमेशा से आपको मैंने पहले भी कई बार शेयर किया था कि आई तो डू इट लाइक वाइल सिटिंग, सो वरना तो नींद आ जाएगी, एकदम बैठते ही नींद आ जाती थी। तो मैंने क्या करा था, इसको बैठ कर मैंने मेडिटेट करना शुरू किया था ना, इट्स अ पार्ट ऑफ माय मेडिटेशन। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी कितना ज्यादा इसके बारे में बताया है, इवन डॉक्टर जो डिस्पेंजा, सभी की सभी। वो रात का जो खूबसूरत टाइम है ना, मतलब जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त होता है, उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला टाइम भी होता है, रात को सोने से पहले, द स्लीपी ड्राउजी स्टेट। अल्फा स्टेट से स्लोली यू गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द स्लीप एंड यू गो टुवर्ड्स योर थीटा स्टेट, है ना। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वाला टाइम जो है ना, परमात्मा के साथ कनेक्शन या सुपर कॉन्शियसनेस के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। सो जस्ट लाइक द ब्रह्म मुहूर्त, वी कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ दिस ब्यूटिफुल टाइमिंग ऑफ योर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड दैट विल कम अनकॉन्शियसली ऑल्सो, ना, अपने आप ही आ जाता है। आपको नींद इंड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी वो वाला टाइम भगवान ने बना ही ऐसे रखा है, नेचर ने, अकॉर्डिंग द सर्केडियम रिदम, कि आपको नींद आएगी ही आएगी। तो उस टाइम को आपने यूटिलाइज किया और उस टाइम पे आपने अपनी सारी की सारी ब्लेसिंग्स याद करके दिन में जो हुआ है आप सोए, तो आप देखना कि अगले दिन कितने अच्छे तरीके से हम लोग उठते हैं। दैट इज द quintessential thing for us, and that is the most important thing which rewires our mind completely. Yes ma'am. your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. Yes ma'am. So magic dust everyone is a mandatory practice for us. हम लोग मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस को जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, तब हमें कुछ लोग दिखाई देते तो हम उन पर करते हैं। मैजिक डस्ट एवरीवन, वो हम लोगों को पता है, दैट इज अ मैंडेटरी प्रैक्टिस फॉर एवरीवन। बट मैजिक डस्ट हैज गॉट न्यूमरस एप्लीकेशंस। मैजिक डस्ट को किसी भी चीज, जैसे कि अभी अभी मेरा काम सिस्टम काम नहीं कर रहा था ढंग से, तो पूनम मैम ने फटाफट से मैजिक डस्ट ऑन द सिस्टम, ऑन मी एंड एवरीथिंग किया। सो दैट वाज magic dust is nothing but focused gratitude on one particular thing, because everything is made up of energy. तो जब आपकी एनर्जी, आपकी फोकस्ड एनर्जी जो डस्ट के फॉर्म में एक पर्टिकुलर चीज पे गई, मतलब तो वो चीज आपकी ठीक हो जाती है ना। तो आई ऑलवेज डू, जब भी मेरे हस्बैंड ऑफिस में जा रहे होते हैं तब उनके कार पे मैं मैजिक डस्ट करती हूँ। इवन वेन एवर वी आर ट्रेवलिंग एनीवेयर, सो वी डू दैट मैजिक डस्ट ऑन आवर कार, ऑन द पेट्स, जब पेट्स जो होते हैं, कुछ पेट जो है, हम लोग जो घूमने जाते हैं ना, तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, उनको तो मैजिक डस्ट करके आप शांत कर देते हो, लेकिन जो पेट्स दे रोल अराउंड ना, वो आपके पास आएंगे, वो जो ओनर होंगे ना, उनके जो मास्टर होते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं करेगा, बट आपके मन में डर लगता है, चुपके से आप मैजिक डस्ट कर दो कि भाई शांत रहना तुम, तो वो इतना फ्रेंडली हो जाएगा ना। अदरवाइज मतलब बिकॉज स्ट्रे डॉग्स आर क्वाइट एक्वाइंटेड टू अस ना, हम लोग वहां से जाते आते हैं, उनको पता चल जाता है, वो आप पर बात नहीं करेंगे। लेकिन कई बार जो पेट्स होते हैं ना, उनको लगता है कि वो हो सकता है वो आपके पास प्यार करने के लिए आ रहे हो, लेकिन जिनको डर लगता है उनको तो फिर डर लगेगा ही। तो हम लोग चुपके से उनके ऊपर जो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। और मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करने के लिए हाथ को ऐसे मूव ना भी करें तो चलेगा, यू जस्ट ब्लिंक योर आईज। रोंडाबन ने कहा है ना कि रोंडाबन जब भी मैजिक डस्ट करती है, शी विल डू इट लाइक दिस ऑल्सो। एंड वो जब कोई ऐसा सिचुएशन होता है, तो अब जैसे मान लो कार चला रहे हो,
कार चलाते चलाते आप स्टेयरिंग व्हील को छोड़ के तो ऐसे नहीं करोगे ना, तब यू विल जस्ट ब्लिंक योर आईज एंड गिव देम मैजिक डस्ट विद इंटेंशन. So remember, magic dust is always given with an intention of healing, whatever it is, whatever the basic important thing is, health, wealth, and magic, or health, wealth, and prosperity, whatever, है ना, health, wealth, and happiness. इन तीनों का तो आपने मतलब कॉमन रखना ही है, कॉमनेस्ट है ये, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो हमें उन्होंने बताया है, फ्लोरेंस कॉबलशिन ने बताया, हीलिंग, ब्लेसिंग एंड विद प्रॉस्पेरिटी. सो these things are mandatory for, these are standard. But when you see someone is suffering from something, तब आप उनको हीलिंग का दे सकते हो. जब आपको यूं लगे कि कोई भी पर्सन है उसको फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप उनको उस चीज का दे सकते हो कि ऑफ अबंडेंस ऑफ वेल्थ, है ना. जैसे कोई मैरिड कपल है, आपको लग रहा है कि भी उन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत अनबन है, तो पीस एंड सेरेनिटी एंड हार्मनी एंड लव का दे सकते हो मैजिक डस्ट. सो मैजिक डस्ट इज ऑलवेज गिविंग विद सम स्प्रिंकलिंग विद एनी इंटेंशन, है ना. इंटेंशन को जब आप मैजिक डस्ट से जोड़ दोगे, यानी कि फोकस्ड अटेंशन जा रहा है आपका फोकस्ड ग्रेटिट्यूड जा रहा है विद एन एडेड इंटेंशन ऑफ समथिंग, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क आउट फॉर. संध्या ने कितनी बार शेयर करना, संध्या ने मैजिक डस्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन शेयर किए थे हमारे साथ. एक बार वो पता नहीं बैंक में गई हुई थी, एंड बैंक में शी सॉ दो पीपल टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आई एम नॉट गेटिंग लीव एंड ऑल. शी इज लाइक साइलेंटली शी स्प्रिंकल्ड मैजिक डस्ट ऑन हिम, और तभी उनको मतलब अचानक से बोलते बोलते उसको बंदे को मतलब बंदा खुश हो गया, उनको फोन आया कि भाई आपका जो लीव है ना वो सैंक्शन हो गया है करके. So, आपकी जो एनर्जीज है, उस एनर्जी ने किसी और को कितना अच्छे से अफेक्ट करा, उसको कितना पॉजिटिव, उसको आपकी एनर्जी के कारण उनके लाइफ में वो चीज चाहिए थी वो उनको मिल गई. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैजिक डस्ट, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैजिक डस्ट. आप जाओगे, आप कहीं पर, जैसे मैम कितनी बार शेयर कर चुकी हैं कि आप फ्लाइट में जब जाते हो तो आप, जैसे बच्चों को थोड़ा सा होता है, सिकनेस हो जाता है उनमें, छोटे बच्चों को वो ईयरबड्स वगैरह लगा के देते हैं तो बच्चे अशांत हो जाते हैं, तब आप उनको स्प्रिंकल कर दो मैजिक डस्ट ऑफ पीस, है ना, मैजिक डस्ट ऑफ कामनेस, है ना, तो उसके कारण वो बच्चा जो है वो शांत हो जाएगा. I have experienced it in a way कि जब कोई पर्सन बहुत सैड हो, I go and hug him and I just sprinkle lots of magic dust on him. एकदम immediately उस पर्सन का वो ग्रीफ जो है वो छोड़कर वो वापस से न्यूट्रलाइज हो जाती है बात. ऐसा नहीं कहूंगी कि ग्रीफ से एकदम वो हैप्पी जोन में आ जाता है, नहीं, ग्रीफ से आप न्यूट्रल हो जाते हो, न्यूट्रल से फिर हैप्पीनेस वाले जोन में आ जाते हो. दिस इज व्हाट मैजिक डस्ट डज, एंड इट कैन बी डन ऑन द प्लांट व्हिच इज डाइंग. सपोज प्लांट में दम नहीं रहा है, उसको वो स्ट्रगल कर रहा है. विंटर्स में ना वी कैन डू दिस, क्योंकि विंटर्स में प्लांट थोड़े से ड्राई अप हो जाते हैं. हम लोगों को स्पेशली जो प्लांटर्स में होते हैं ना, उन लोगों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है उन प्लांट्स का, बिकॉज उनको हम ओवर वाटर नहीं कर सकते हैं, देन रूट्स मे गेट रॉटन, यू नो, एंड हम लोग उनको अंडर वाटर्ड भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अंडर वाटर रखने से ऑलरेडी इतना डिहाइड्रेटिंग वाला मौसम हो जाता है. तो उस कारण से पता है क्या करते हैं कि हम लोग उनको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं हमेशा. हर एक प्लांटर में जाके मैजिक डस्ट ऑफ लाइफ, मैजिक डस्ट ऑफ लव आप दोगे ना, तो देखना सारे के सारे प्लांट्स कितने हैप्पी हैप्पी वाले हो जाएंगे. So it can be sprinkled on anything and everything. Magic dust को किसी भी चीज में हम लोग कर सकते हैं, because everything, it is based on the philosophy and the metaphysical thing that everything is made up of energy. तो जिस भी किसी चीज में एनर्जी है, उसी चीज को आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करो with an intention of course. So because of that person, वो भी पर्सन हो चाहे वो कोई थिंग हो, उसकी एनर्जीज में फर्क पड़ जाता है हमारे ब्लेसिंग के कारण, बिकॉज वी आर द चोजन वंस. हम लोग ब्लेस्ड हैं, वी आर सो पावरफुल. इस कारण से हमारे मैजिक डस्ट का या हमारी ब्लेसिंग का उस एनर्जी पे, जिस भी एनर्जी पे हम लोग डालेंगे, चाहे वो एनर्जी किसी इंसान के फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी किसी एनिमल के फॉर्म में हो, किसी बर्ड के फॉर्म में हो, किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, कुछ भी हो, वो चीजें ठीक हो जाती हैं. कल ही आरती जी ने शेयर किया था ना, आरती खट्टर जी ने, तो उन्होंने बात करी अपनी मशीन से, वॉशिंग मशीन वो चालू हो गई. कितनी बार मतलब श्याम जी तो हंसते भी है कि प्रिया तुम तो मैकेनिक्स की छुट्टी करवाओगे. तो दिस वे, यू नो, magic dust is sprinkled on the things that are not working and they start working. But you need to have an intention to it. And most importantly, जैसे मैंने कल बताया था कि we have to stay in the good zone in order to let your magic dust work. Otherwise, it will not work. हम लोग जितना भी ब्लेस करें तो पहले हम लोग अगर अपने कप को भरेंगे तभी तो हम औरों को ब्लेस कर पाएंगे ना. अपने कप को भरने का मतलब है कि हम जब एक स्टैटिक स्टेट ऑफ हेल्थ में रहेंगे, एक ऐसे स्टेट ऑफ हेल्थ में रहेंगे जब भी हम लोग हैप्पी हो,
है ना. हम हैप्पी इन द सेंस कि जब हम लोग कर सकते हो, आर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव दैट टाइम, कि हम लोग क्रिएटर के मोड में, एग्जैक्टली इफ आई से द करेक्ट वर्ड, इट विल बी व्हेन यू आर अ क्रिएटर, देन यू कैन ब्लेस एनीथिंग एंड एवरीवन. But when you yourself are in the survival mode, how will you use your life to bless others? You will not be able to now. You have to be on the creator seat in order to bless others. So in order to make your magic dust also work, you have to take the seat of a creator. So always if you are in the seat of creator, then magic dust will obviously always work. Magic dust, magic wand, everything will work, and you will become an alchemist when you start using your life to bless and heal and prosper people. So this is the application of magic dust. जब कोई बैड मूड में होता है तब भी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो आप चुपचाप से. हाँ, मुझे एक बार ये पूनम मैम ने बताया था कि वो क्या करते हैं ना, कि जैसे बच्चे सुबह उठ रहे होते हैं, लाइक व्हेनेवर दे वेक अप, तो चुपके से आप उनको ना, आप उनके कमरे में जाने की जरूरत तो है ही नहीं, आप बाहर से उनको ब्लेस कर दो, उनको मैजिक डस्ट उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दो कि उनका जो हेल्थ है और उनका जो सारा का सारा दिन है बहुत अच्छा जाएगा, सक्सेसफुल जाएगा. इस हिसाब से हम लोग इस इंटेंशन के साथ मैजिक डस्ट डाल सकते हैं. उसके बाद एक और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने बताया था कि whenever her husband is grumpy ना, then she does what? She sprinkles magic dust, lots of magic dust on the bed, जहां पर वो सोते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं. So magic dust has got millions of application. Use it the way, मतलब you can experiment it with, like you can go and experiment with it with जैसे भी जो भी लेवल पे आप जाओ, किसी भी लेवल पे आप उसको एक्सपेरिमेंट करके आप यूज कर सकते हो. इवन इफ द यू सी, आप फोन के ऊपर, जैसे आपका फोन है, इट्स नॉट वर्किंग, और यू आर कंटिन्यूअसली गेटिंग सम नेगेटिव न्यूज, आप उस पर मैजिक डस्ट करो एंड यू सेट एन इंटेंशन दैट एवरीथिंग, जो भी न्यूज इसमें आएगी या जो भी कुछ आएगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आएगा, तब आप देखो वो उस हिसाब से काम करेगा. सो मैजिक डस्ट हैज गॉट जिलियंस ऑफ एप्लीकेशन एंड इट इज ओनली योर इमेजिनेशन विच विल लिमिट इट, बिकॉज आवर इमेजिनेशन इज बियॉन्ड एनीथिंग ना. हम तो कुछ भी सोच सकते हैं, तो जितना वाइड आपका इमेजिनेशन है उतना वाइड आपका मैजिक डस्ट का एप्लीकेशन हो सकता है ना. सो दिस इज द थिंग. नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक. यस मीतू मैम. The magic never ends. So magic is never going to end from our life, because ये जो हमारा जो यहाँ पर मिल्की वे दिखा रखा है, इसकी चारों तरफ आप ये देखिए कि कितना सारा मैजिक है. इट इटसेल्फ इज अ मैजिक, जैसे आइंस्टाइन ने बोला था, और इस बात का उल्लेख किया गया है बार बार. डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने भी इस बात का उल्लेख किया था, और इस बात का फ्लोरेंस कॉवलशन ने भी बताया है कि आइंस्टाइन वाज वन पर्सन हु टोल्ड अस दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मिरेकल. You just need to have that eye and ear to catch that vibes. Because if you do not believe it, you cannot have it. If you believe that there is magic in everything, you will be experiencing magic in every step of your life. You will have to have that faith upon the universe, that universe is magical and miraculous. Then only everything will be happening to you in that particular direction. Because whatever you think, you are, मतलब universe आपको क्या दे रहा है, जो आप हो. अगर आप सोच रहे हो कि एवरीथिंग इज मिरेकल, तो ओनली मिरेकल विल हैपन टू यू एंड योर फैमिली एंड मेंबर्स एंड लाइक दैट, यू नो. तो इसीलिए मैजिक विल नेवर एंड फ्रॉम आवर लाइफ, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इट. जितने भी हम लोग यहाँ पर अभी 120 पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने हम लोग हैं, हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं. अगर हमारा ये 17 सीजन तो हमारा इसमें चल रहा है ना, हम लोगों ने जैसे यूट्यूब में जब से डालना शुरू किया, तब से ये हमारा 17th टाइम है जो अभी खत्म होने वाला है. उसके बाद हम लोग 18 चालू करेंगे. लेकिन उससे पहले से भी पीपल आर कनेक्टेड विद अस एंड दे आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड दे नो व्हाट ऑल द चैप्टर्स टेल अस. But still, why we are attending these sessions every day, why we are doing these practices, irrespective of the fact of any good thing or bad thing happening in our life, it's because we know that this is the life, this is the crux of life. If you practice gratitude, then only life is going to change. But when the time comes, we think that we take these things for granted. आपको लगता है कि नहीं, मेरे को आ गया है, मैं कर लूंगी प्रैक्टिस, आई वांट टू टेक अ ब्रेक. तो रोंडा बर्न सेज देयर कैन नेवर बी एनी ब्रेक. मैजिक आपका कभी भी खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस इट. दिस इज द मेन थिंग. जो प्रैक्टिस आप करोगे तो मैजिक आपके लाइफ में चलता रहेगा, ऑलवेज मैजिक एंड मिरेकल्स बोथ. सो यहाँ पर वो बताती हैं, क्या पढ़िए मैम. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it is a pattern in my subconscious mind. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time,
the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it is there, and then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. Quote, I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That is because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Unquote by Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. Thank you so much, Meetu ma'am. इतना ही पढ़ पाएंगे. Thank you for bailing us out. Thank you Thank so you. much. You are a lovely reader. So yes, so Rhonda One यहाँ पर बोलती हैं कि magic never ends from our life if and only if we practice it. Rhonda One is the person. See, falling down is human nature. It is the nature of the law that you will fall down. It is okay to fall down because अगर हम लोग fall down नहीं होंगे तो दोबारा से उठ के वापस से और भी ज्यादा अच्छे से practice कैसे करेंगे? So falling down is okay, but we have to catch ourselves. We have to focus on the solutions. Day number 18 में ना Rhonda One ने बहुत अच्छे से बताया था कि we always have to be solution oriented. हम लोगों को problem oriented नहीं रहना है, solution oriented रहना है. So we have to again, क्यों the magic में क्या है कि क्यों लो अपनी लाइफ में से क्या चीज मेरी लाइफ की वो ठीक नहीं चल रही है, क्या चीज में मैं और भी ज्यादा मैजिक ला सकती हूँ. तो उस चीज को आइडेंटिफाई करो. कब जब कुछ करने का नहीं है उस चीज को आइडेंटिफाई करो और उस एरिया की प्रैक्टिसेस बढ़ा दो. बिकॉज दिस इज आपको मतलब खुद ही पता चल जाएगा. एवरी वन ऑफ यू इज अ हीरो एक्चुअली हु इज एक्सपीरियंसेस दिस मैजिक एंड मिरेकल्स इन एवरीडे लाइफ. सो वी ऑल कैन टेल दैट क्या है मैजिक के बिना हमारी लाइफ क्या थी. बिकॉज मैजिक के बिना, मैजिक एंड मिरेकल्स के बिना, इस बुक बेहतरीन किताब द मैजिक रिटन बाय रोंडा बर्न के बिना हमारी लाइफ क्या थी हमें पता है सबको. क्योंकि वो लाइफ तब इतनी अच्छी नहीं थी या उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी. मे बी वी वर नॉट इवॉल्व्ड दैट टाइम. बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव कम इनटू दिस जर्नी. वी हैव कम इनटू दिस जर्नी विद सम गोल, विद समथिंग, विद सम इंटेंशन दैट या कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है, प्रॉब्लम के बिना तो हम लोग काम ही नहीं करते ना. अगर वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती हमारी लाइफ में तो हो सकता है मैजिक हमारी लाइफ में आती ही नहीं. हम सभी के सभी we have all accumulated here in because of some challenge that we were facing sometime, and now this magic book is giving us solutions to it. उसका सोल्यूशन मिला हम लोगों को. बट जैसे ही अगर हम लोग छोड़ देंगे ना तो हम लोगों को वो जो चीज है हमारी लाइफ से इवेपोरेट हो जाएगी. बिकॉज हमारी एनर्जीज बहुत ज्यादा डिप करने लग पड़ेंगी. जब हमारी एनर्जीज डिप करेंगी तो वी विल नॉट बी इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स. यूनिवर्स ऑलवेज लव द पीपल हु आर इन द अलाइनमेंट. अलाइनमेंट के साथ साथ जब होंगी तभी आपके मैनिफेस्टेशंस काम करेंगी, तभी आपकी रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तभी आप एक कंपैशनेट पर्सन बन पाओगे, तभी आप औरों की कमियों को समझ पाओगे कि औरों की कमी नहीं है, कमी तो मेरे अंदर ही है. तभी आपके अंदर वेल्थ की अबंडेंस भी आएगी है. तो ये सब तभी आएगा जब यू आर प्रैक्टिसिंग इट. इट इज नॉट अबाउट अटेंडिंग द सेशंस एंड गोइंग एंड फॉरगेटिंग अबाउट द थिंग्स. वी हैव टू प्रैक्टिस इट. वी हैव टू एब्सॉर्ब इट इन आवर डेली लाइफ. वी हैव टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट मैजिक इनटू आवर डेली लाइफ. मेरे को इतना ज्यादा लगता है अभी जब हम लोग मैजिकल लाइफ को जी रहे हैं कि वाई मतलब इतनी लेट उम्र में क्यों पता चला मुझे. आई फील सो ब्लेस्ड दैट व्हेन किड्स लाइक छोटे छोटे बच्चे, जब जैसे ज्योति की डॉटर है, ये बहुत छोटी सी हैं, वो प्रैक्टिस करती हैं चिल्ड्रंस ग्रुप में ना. विनीता की डॉटर हमेशा शेयर करती हैं, कई बार वो अपने नोट्स शेयर करती हैं. इतना अच्छा लगता है मुझे. प्रियंका के बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, अनु की बेटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं, छोटे हैं वो. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्यों पहले नहीं पता चला. बट देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम ऑफ एवरीथिंग.
तो अभी हमारा टाइम जब आया है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये मैजिक हमारे लाइफ में कंटिन्यू करे, तो वी हैव टू गो ऑन डूइंग द प्रैक्टिसेस. Rhonda Byrne is the writer of this book, and Rhonda Byrne still says that there are aspects of my life that do not work properly at some moment of time, है ना. उन्होंने तो मैजिक बुक लिखी भी है, उनको तो सब कुछ पता है, पर फिर भी उनके लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं ना कि जहां पर उनको लगता है कि नहीं, दिस एरिया इज नॉट वर्किंग. देन वी आर नॉट द स्पेशल वंस. हमारे लाइफ में भी ऐसी चीजें आएंगी, तब हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि ये चीज ठीक नहीं है ना, तो इस एरिया की कौन सी प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए. और वो प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग बुक में पीछे जाएंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ क्या करनी चाहिए. तो दिस थिंग मस्ट कम स्पॉन्टेनियसली टू अस कि हाँ ये वाली प्रैक्टिस मुझे करनी है. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी ने मुझे कुछ ऊंची आवाज में कुछ बोल दिया, इट्स ओके, काम डाउन एंड वर्क ऑन द रिलेशनशिप थिंग. अभी के अभी वो मैजिकल रिलेशनशिप वाला चैप्टर आप शुरू कर दो. किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको ऐसा लगा कि समवन हैज लेफ्ट यू फॉर द हेवनली अबोर्ड, उनके लिए सबसे पहला काम उनके लिए ये करो कि उनकी ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दो. हमेशा कभी भी कोई पर्सन, आपका लव्ड वन हु हैज टेकन अ ट्रांजिशन, उनके लिए ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दो. आप बिल्कुल उसमें सल्क मत करो, आप ब्लेसिंग्स लिखो ना, आपको उनके कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप वो काम करो ना, सबसे पहली बात है आप वो काम करोगे जो वो चाहते थे. इफ यू आर अ डॉटर, इट वाज योर फादर, आपकी मॉम हो सकती है, कुछ ऐसा, तो वो जैसा चाहते थे ना कि आपको एक पर्टिकुलर पोजिशन में देखना चाहते थे, हो सकता है वो आपको लाइफ में, उसके लिए काम करो और उनकी ब्लेसिंग्स लिखो. वो तो कहीं गए ही नहीं है ना, ही इज स्टिल द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल यूनिवर्स. इस चीज को समझो, और जैसे ही कुछ ऐसा होता है उनके लिए ब्लेसिंग लिखना शुरू कर दो. धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे वो ग्रीफ की एनर्जी को ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है. This is very important. So now you come to know that yes, now this is the chapter, healing the relationship has to be done. इस तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिसेस बहुत हैंडी हो जाती है अगर हम लोग मैजिक बुक के प्रैक्टिसेस को बार बार करते रहेंगे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर बोलती हैं, ओपरा विनफ्री का बहुत अच्छा एक कोट है कि उन्होंने बोला, ये तो रोंडा बर्न बोल रही कि आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय द फॉल्स अपीयरेंसेस एनी मोर. यानी कि जब भी कोई लाइफ में चैलेंज आता है, उसको मैं चैलेंज नहीं समझती, उसको मैं अपॉर्चुनिटी समझती हूँ. अपॉर्चुनिटी टू मेक अ बेटर पर्सन, अपॉर्चुनिटी टू मेक मी इवन बेटर पर्सन. पहले जो मैं थी उससे और भी ज्यादा बेहतरीन इंसान बनाने के लिए ये चैलेंज मेरे लाइफ में आया है. मुझे, आप जैसे एडिसन की बात आप याद रखोगे ना, तो व्हेन एडिसन वाज इन्वेंटिंग बल्ब, उस टाइम पे उन्होंने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. कहा जाता है उन्होंने ऑलमोस्ट 9000 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो वो सारे के सारे फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो डिसहार्टन नहीं हुए. उन्होंने सोचा ये 9000 जो स्टेप्स हैं ये मैंने किए, पर वो कामयाब नहीं हुए, तो कम से कम ये 9000 तो ऑफ हो गए ना मेरी लाइफ से, अब मुझे वापस से जाके इनको नहीं करना पड़ेगा. अगर मैं 13 सीढ़ी में पहुंची हूँ, 13 सीढ़ी में पहुंची, तो वो 12 सीढ़ियां तो और तय नहीं करनी है ना मुझे, मैं 13 से ही तो स्टार्ट करूंगी अपनी लाइफ को. दैट वे always think like that कि these challenges have come in order to make me even stronger, और strong बन के ही मैं आगे निकलूंगी. यूनिवर्स को मैं दिखाऊंगी कि I can come out victorious through every challenge of my life. राइट? तो इस तरीके से कहती हैं कि अगर जब मैं इस चीज पे फोकस करती हूँ, तो दैट सोल्यूशन, दैट प्रॉब्लम जो है, वो जो भी चैलेंज होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. इट गोज ऑफ फ्रॉम माई लाइफ जस्ट लाइक अ पफ ऑफ स्मोक. एकदम उड़ जाता है मेरी लाइफ से. और उड़ने का मतलब क्या है? वो सिचुएशन को, नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना, एवरीथिंग जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म. यू आर चेंजिंग दैट चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी. This can be an affirmation. Na? I change every challenge of my life into wonderful opportunity. Wow. So this can be done. So इस तरीके से आप challenges को opportunity में convert करते जाते हो by practicing gratitude. Because now you know that challenge is coming in my life in order to teach me something. तो इस तरीके से जब ये रोंडा बर्न का है कि ये ओपरा विनफ्री बोलती हैं कि जब मैंने छोटे छोटे चीजों को देखना शुरू किया, उनको थैंकफुल कहना शुरू किया, आपको पता चल जाएगा ना, मतलब देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड द पर्सन हु डजंट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. आपको पता चलेगा कैसे डिफरेंस होता है. आप छोटी छोटी चीजों में आपका माइंड ही वैसे रिवायर हो जाएगा कि आपको लगेगा वाओ. अगर आप सुई को भी उठाओगे ना, जैसे मान लो सुई को उठाया आपने, आप कुछ सिलाई करने लग रहे हो, कुछ भी, अब थ्रेड है, सुई है, कुछ करने लग रहे हो, तब आपको लगेगा कि वाओ, मतलब आपको ना उसका मतलब पता चलेगा कि इसके बिना अगर ये चीज अभी नहीं होती मेरे पास, तो मैं क्या करती. सपोज यू आर गोइंग समवेयर, यू आर इनटू समथिंग, और आपका जिप खराब हो गया, तो आपको पता चलता है कि आपके पैंट का जिप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या बटन्स, है ना. तो आप यू स्टार्ट थिंकिंग इंट्रिकेटली अबाउट द थिंग, यू फाइंड फीलिंग्स इन एवरीथिंग. आप फीलिंग के साथ जब ग्रैटिट्यूड करते हो तब ये चीजें आती हैं. आपका दिमाग ही और तरीके से काम करने लग पड़ता है कि वाओ,
अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट. हम लोगों को पता था कि थैंक यू कैसे बोलना है, कोई हमारे लिए कुछ करता था तब हम थैंक यू बोलते थे, बट वी डिडंट नो कि थैंक यू हमें पहले ही बोलना चाहिए ना. अगर हमारी कोई मैनिफेस्टेशन करवाना चाहते हैं, हम लोग कुछ चाहते हैं कि हमारा कोई गोल है, उसके लिए पहले ही थैंक यू बोल दो. अपनी सीट पहले ही रोक लो. बसेस में पहले सीट रोकते थे ना, तो अपनी सीट पहले ही रोक लो यूनिवर्स के पास कि मैंने तो थैंक यू पहले ही बोल दिया इन एडवांस. हर किसी चीज के लिए थैंक यू. एयर मिली हुई है उसके लिए थैंक यू, वाटर मिला हुआ है उसके लिए थैंक यू, जमीन मिली हुई है, जमीन का एक टुकड़ा मिला हुआ है जिसके ऊपर आपने अपना घर बनाया उसके लिए थैंक यू. खाना आपके पास आ रहा है जो कि कोई और पैदा कर रहा है लेकिन आपकी प्लेट में रहा है तो उसके लिए थैंक यू. सो नाउ वी थिंक सो मच इंट्रिकेटली. तो यही ओप्रा विंफ्री बोलती हैं कि जब मैंने जिंदगी की सच्चाई को समझना शुरू किया कि एवरीथिंग इज मैजिकल एंड मिराक्युलस, एवरीथिंग को जब मैंने थैंक यू बोलना शुरू किया तो my bounty increased like anything, and now she's a billionaire. From where to where? Yesterday I was I don't know, I was running through an interview of hers, तो मैं उसको देख रही तो कैसा चेंज हो गया उनकी लाइफ में. Still she is an introvert. उनको इंट्रोवर्ट वो introverted है लेकिन फिर भी she spends so much time in the public. Why? Because she has made her mind like that. तो आप अगर इंट्रोवर्टेड हो, आप अगर, वो कोई गलत बात नहीं है, इंट्रोवर्टेड होना कोई गलत बात नहीं है. इट्स वेरी प्राउड टू बी एन इंट्रोवर्ट पर्सन. अगर आप हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. आपको सॉलिट्यूड में बहुत सारा टाइम मिल जाता है ना. यू गेट दैट टाइम इन सॉलिट्यूड, यू आर मोर कनेक्टेड विद द स्पिरिट ऑफ योर सेल्फ. बट दिस इज द थिंग, you start enjoying every phase of your life. Even if you are a 5-year-old child or you are a 70 years old person, you are still enjoying in both the conditions because you are floating in the zone of gratitude, and success and wellness and everything will come into you like that. Byproduct है वो तो. Gratitude का byproduct है success, best of health and happiness, है ना. So इन्होंने कहा है कि through the practice of gratitude you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you. Yes, gratitude is actually a gift to the from the universe to us. वो हमें बताया गया है ना, पहले तो हमें पता ही नहीं था. पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड आई थैंक माई निधि जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना मेरे को आता है. एंड दीप्ति मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज से क्वांटम करवाया है. अदरवाइज ये बुक मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह से हमने पढ़ा था, जिस तरीके इस बात को समझा था, हो सकता है मेरा टाइम तक उस टाइम तक नहीं आया था जब मुझे इस गिफ्ट के बारे में पता चलता, इस गिफ्ट की वैल्यू के बारे में पता चलता. अभी हम लोग जब कंप्लेन नहीं करते, कोई चीज हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें पसंद ना भी आए तो भी हम लोग बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करते हैं उस चीज का, क्योंकि आवर माइंड इज रिवायर्ड लाइक दैट. वी फोकस ओनली ऑन द ग्रैटिट्यूड पार्ट, राइट. सो दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न कहती है कि यूज इट एज मच एज यू कैन. हर किसी चीज में ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करो. आप इंटेंशन सेट करो, सुबह उठते ही अपना इंटेंशन सेट करो. जो भी काम आपने करना है, जैसा भी काम है, कोई हमड्रम एक्टिविटी है, जैसे मान लो सिंपल सी कुकिंग करनी है या किसी मीटिंग के लिए जाते हो, कुछ भी करते हो, आप अपना मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो. खाना खाते हो, आप मैजिक इंग्रेडिएंट्स कर लो. काउंटिंग द ब्लेसिंग्स तो वो आप हमेशा करोगे ही करोगे. इस तरीके से क्या है, ये इसको आप ना एक प्रैक्टिस के बारे में, एक रूप में, या फिर किसी, आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट को आप वैसे एज अ करिकुलम पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्ट शायद नहीं आएगा. लेकिन जब आप समझोगे कि हिस्ट्री पढ़ के मैं अपनी जगह की जानकारी ले रही हूँ कि मैं कैसे जगह को बिलोंग करती हूँ, कैसे मेरी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, वहां पर अगर कोई कपड़े भी पहने जाते हैं वो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफिकल कंडीशन, कि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं. तो जब मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी ना, आई वाज नेवर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु विल एवर एंजॉय स्टडिंग हिस्ट्री एंड ऑल, बट नाउ आई डू दैट बिकॉज नाउ इट इज नो मोर अ करिकुलम फॉर मी. इसी तरीके से ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिसेस है, अब भारी भरकम शब्द, काउंटिंग द ब्लेसिंग्स नहीं, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, अपने नियामतें ही तो गिननी है, अपने चारों तरफ ही तो देखना है कि क्या क्या है हमारे लाइफ में, उनको ही तो गिनना है. मैजिक रॉक में क्या करना है, कोई लिखने का काम थोड़ी है, बस याद ही तो करना है ना कि क्या क्या चीजें हैं हमारे लाइफ में, क्या क्या अच्छी बातें हुई, उनको ही तो याद करके थैंक यू बोलना है. तो ये सब हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं. ये सब हम दीप्ति मैम के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए कर रहे हैं. नहीं करेंगे तो फिर वापस से उस जोन में चले जाएंगे जब लाइफ में अनफुलफिलमेंट थी, जब लाइफ में हमें कंप्लेन्स होती थी सबके लिए, जब हम लोग रात को रोकर सोते थे, हो सकता है, जब हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी हमारे लाइफ में, अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी हर किसी चीज से. अभी हमारे अंदर ना लव है, अटैचमेंट नहीं है. लव है हमारे बच्चों के लिए, हमारे सभी चीजों के लिए, लेकिन अटैचमेंट और लव में बहुत फर्क होता है. लव का मतलब है व्हेन यू आर हैव दैट सैक्रिफाइसिंग नेचर आल्सो, कि आप जो है अपनी किसी चीज को दे रहे हो, है ना. आप जब
लव करते हो किसी से, तब अनकंडीशनल लव जो है आपका, वो आपको जनरेट हो जाता है आपके अंदर. लेकिन व्हेन इट इज अटैच्ड विद सम एक्सपेक्टेशन, देन दैट इज अटैचमेंट. है ना. आपका बच्चा मान लीजिए गड्ढे में गिर गया है अगर, तो आप गड्ढे में थोड़ी ना गिर जाओगे. अगर आप गड्ढे में आप भी गिर गए तो उसको उठाओगे कैसे आप. तो आपको तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा ना कि आप उसको डायरेक्ट कर पाओ, आप उसको समझा पाओ, उसको विजडम का बात बता पाओ. वो होगा तब जब आपको लव होगा. अटैचमेंट का मतलब क्या है, आप उस धागे से उसके साथ अटैच हो, आप फटाक से आप भी गड्ढे में गिर गए तो नहीं होगा ना. सो दैट इज व्हाट, ये सब कुछ चीजें जो है रोंडा बन्ना ने हमें बताई हैं कि हमें अपने माँ बाप से या अपने लव्ड वन से कितना ज्यादा प्यार होता है. लेकिन जब उनकी मॉम को उनकी फादर ने ट्रांजिशन लिया, तब उनके मॉम ने भी तो ग्रेटिट्यूड करके एक जोन में आई, न्यूट्रलाइज वाले जोन में आई, और तब उन्होंने अपनी लाइफ को ठीक किया. बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो ये मैजिक मिला हुआ है, मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड मिला हुआ है, ये वंडरफुल वर्ड मिला हुआ है, इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी हमारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी. सो या थैंक यू सो मच. मैजिक बुक से हम इतना ही पढ़ते हैं. नाउ वी गो टू द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट. वंडरफुल बुक दिस बुक इज रिटन बाय फ्लोरेंस कॉवल्शिन. क्लासिक बुक है, बहुत अच्छी किताब है. इवन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से भी पहले लिखी गई थी ये किताब. आप सोचो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है कि इतनी पहले की किताब भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं. 1940 में तो इनका ट्रांजिशन भी हो चुका था. तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किताब है हमारे लिए. दैट टाइम ऑल्सो फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने कहा, योर लाइफ इज जस्ट लाइक प्ले इट. योर लाइफ इज अ गेम, प्ले इट. बचपन में ना वो आते थे ना कोर्स की, लाइफ इज अ गेम, प्ले इट. तो वो प्ले करने का ही है. डू नॉट टेक लाइफ सीरियसली, वी हैव टू टेक इट लाइटली. जब हम लाइट रखेंगे ना, भारी भरकम बोझ जब हम अपने शरीर पर डाल के चलेंगे, तो चलना कितना मुश्किल हो जाता है ना. तो हमारे लिए चलना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए सब कुछ आसान है. वाई? बिकॉज वी आर टेकिंग आवर लाइफ एज अ गेम. वी नो दैट हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने लास्ट कल हमने जो पार्ट पढ़ा उसमें उन्होंने बताया हुआ था, उस लेडी का चल रहा था कि उनको पैसे चाहिए थे. उनको शी वांटेड अ अमाउंट, लार्ज सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड उन्होंने फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने उनको एक एफर्मेशन दिया था कि, एंड बताया था, यू हैव टू गिव फर्स्ट इन ऑर्डर टू रिसीव. दिस इज व्हाट रोंडा वन सेज ना. दिस इज व्हाट द मैजिकल फॉर्मूला इज. क्या है मैजिकल फॉर्मूला जो रोंडा वन ने बता रखा है हमारे मैजिक बुक में? मैजिकल फॉर्मूला ये है ना, गिव देन रिसीव इट. Deliberately you have to say thank you for something that you do not want also. Maybe you do not want to say thank you, but still you have to say it. That is a deliberate action. तो deliberate action करके जब आप give करोगे, automatically you are going to receive it. है ना. तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर फ्लोरेंस कॉवल्शिन बता रही हैं कि किस तरह से गिविंग विल अट्रैक्ट abundance. When you start giving, you will be attracting abundance from the universe. So yes, please start reading. Good morning, everyone. Yeah, हाँ जी भारती. Good morning. Good morning. Lovely experience हाँ कल जो शेयर किया आपने. Thank you so much. We really enjoyed the trip. Yeah, of course. So, Bharti, we have to read from here. Giving opens the Giving way for opens. receiving. Okay. Okay, ma'am. Giving opens the way for receiving. In order to create activity in finances, one should give. Tithing or giving 1/10 of one's income is an old Jewish custom and is sure to bring increase. Many of the richest men in this country have been tithers, and I have never known it to fail as an investment. The 10th part goes forth and returns blessed and multiplied. But the gift of tithe must be given with love and cheerfulness. For God loves a cheerful giver. Bills should be paid cheerfully. All money should be sent forth fearlessly and with a blessing. This attitude of mind makes man mastery of money. It is his to obey, and his spoken word then opens vast reservoirs of wealth. Man himself limits his supply by his limited vision. Sometimes the student has a great realization of wealth, but is afraid to act. The vision and action must go hand in hand. As in the case of a man
who bought the fur-lined overcoat. A woman came to me. Skin disappeared suddenly. रितु का स्क्रीन है. तो एक्चुअली प्रिया मैम का नेटवर्क है. अच्छा, प्रिया मैम का नेटवर्क. ओके. It will take 2 minutes. सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था. मैं दोबारा से खोल देती हूँ. आई एम सो सॉरी. तो उसमें क्या है ना कि हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, टाइदिंग के बारे में. व्हेन व्हेन यू वांट टू रिसीव समथिंग, यू हैव टू गिव. आपको पहले देना पड़ेगा. ये जो अभी भारती जी ने पढ़ा है कि जुडाइज्म में जो जूइश कस्टम था ना, उसमें ये था कि दे वुड, कितना भी कमाई हो आपकी, वो हमेशा 10th पार्ट जो है हमें देते थे. लाइक वो दान करते थे हमेशा. एंड दिस इज व्हाट इज अडॉप्टेड बाय सिखिज्म आल्सो. सिखिज्म इज अ वेरी न्यू रिलीजन, है ना. इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन सिखिज्म में उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव जी ने हर एक रिलीजन में से बेस्ट चीज को लेकर उन्होंने सिखिज्म में डाला था. क्यों? उन लोगों को ये पता था कि जब तक हम लोग किसी को देंगे नहीं ना, जब तक हमारे अंदर गिविंग की भावना नहीं आएगी, तो व्हेन यू आर गिविंग समवन, देन यू आर रिफ्लेक्टिंग अबंडेंस. आपके पास है तभी आप दे रहे हो ना. तो टाइदिंग बोलते हैं इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिख रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट है कि आपको जो है ये दान करना है 10th पार्ट. एंड यहाँ पर ये फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन बोलती हैं कि आपको ये खुशी से देना है. ऐसा नहीं कि मन मसोस के और रोनी सूरत बनाकर दो, या बिल्स पे करने हो तो ऐसे रोनी सूरत बना के दो. नहीं, आप ये सोचो कि जब भी आप कोई दे रहे हो, आपके यहां से पैसा निकल रहा है, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू. ऑफ कोर्स इट विल. सो गिव इट विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड. Attach the words love, happiness and gratitude with it, because ये ही हमें हमारे रिलीजन सिखाते हैं. अब रिलीजन क्या ये चीज सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ना फियरफुल पर्सन्स हैं. वी आर नॉट गॉड लविंग, एक्चुअली वी आर गॉड फियरिंग पीपल, जो की बात OMG में आई थी, ओ माय गॉड में, और वो बहुत सत्य वचन है. बिल्कुल हम लोग डर के हमारे चीजों को करते हैं. तभी इस चीज को बनाया गया था कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको और ये करना पड़ेगा, है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट. और जब तक हम लोगों को कुछ इम्पोज नहीं करते ना, यार आज क्या हो रहा है. थैंक यू सो मच इंटरनेट कनेक्शन. आई डोंट नो. हाँ, तो क्या है ना कि आज क्या हो रहा है, ये आई डोंट नो क्या, आई स्वेयर. तो या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो ये जुडाइज्म है, जो इवन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन ये इस्लाम ऑल्सो. उनमें भी वो लोग उनको ज़कत कहते हैं, लेकिन वो करते हैं इस चीज को कि वो भी अपने कमाई का जो दान करते हैं, कुछ हिस्सा दान करते हैं. व्हेन यू डू इट, आप देखोगे ना, जैसे कि सिखिज्म में जो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइदिंग का, वहां मुझे आज तक कभी भी ना, दोज पीपल जहां पर भी हम लोग किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, दे आर सो हेल्पफुल टू यू. इफ यू गो समवेयर एंड यू सी एनी अदर पर्सन, तो अगर आप, मुझे लगता है कि अगर हम किसी सिख को देखते हैं ना, हमें कुछ ज्यादा, क्योंकि दे आर सो हेल्पिंग एंड दे, I have never found anyone who is sick and who is begging anywhere. नहीं, they don't, because उनके ऊपर ना एक, मुझे लगता है, नियामती होती है, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है, उन्होंने करा होता है. उनसे अगर ना वो खुशी से करें तो फोर्सफुली भी करवाया जाता है. तो यही कारण है कि हम लोगों को भी ये चीजों को समझकर हमें करना चाहिए फॉलो, क्योंकि यही चीज है हमारे, इसके कारण ही हमारे लाइफ में अबंडेंस आएंगी, वरना नहीं आएंगी. अबंडेंस की फीलिंग यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो. यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हो. तो आप क्या हो? आप अबंडेंट हो, तभी आप लोगों को दे रहे हो, तो यूनिवर्स तभी आपको देगा. दिस इज व्हाट, this is law of attraction actually. See, law of attraction is active since then. Ever since this planet came into existence, ever since these books were written, पहले से ही था. But now we are experiencing it in the manner that we are creating things deliberately. डेलिब्रेट क्रिएशंस कर रहे हैं ना हम लोग, जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं. ऑल्दो इट वाज वर्किंग, पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, लेकिन हम इसको अब अपने लाइफ के हर एक पार्ट में डेलिब्रेटली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये चीज चाहिए. हम क्योंकि क्रिएटर की कुर्सी में बैठना चाहते हैं, हम लोग सर्वाइवर की कुर्सी में नहीं बैठना चाहते. जब तक हमें पता नहीं था, जब तक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते थे, या ग्रैटिट्यूड के बारे में नहीं जानते थे, तब तक वीवर भगवान राम भरोसे इन द सेंस कि हम लोग सोचते किस्मत भरोसे बैठे हुए थे. राम भरोसे भी नहीं कहूंगी उसको, हम लोग किस्मत भरोसे बैठे हुए थे.
बट अभी हम लोगों को क्या करना है ना, हमें पता है कि ना, आई वॉन्ट दिस, आई हैव टू डू दिस टू टू गेट देयर, टू रीच देयर, देन वी सरेंडर। ऐसा करने से क्या होता है, वी विल बी एक्सपीरियंसिंग अबंडेंस। सो अगर हम लोग अपने आप को इस तरह से करें कि जब बिल देते हुए, कोई बिल पे करना पड़ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा बिल आ गया, कोई बात नहीं, आने दो। जैसे मान लीजिए दिवाली का सीजन आ रहा है, दिवाली का सीजन है या किसी भी सीजन है जब आपको बहुत सारे गिफ्ट्स एक साथ खरीदने पड़ते हैं, दैट टाइम हमारा माइंड ये सोचता है कि भाई इतना सारा देना पड़ेगा, तो उस टाइम आप जितना दोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, कि आपने जितना दिया, लाइक इट, जितना भी वो आपके पास, वो अबंडेंस में आएगा। इसलिए गिव विद लॉट्स ऑफ लव, रिलीज विद लॉट्स ऑफ लव, अदरवाइज वो स्टक एनर्जी। जैसे पहले के वो एग्जाम्पल दे रखा था, तो उस लेडी ने सारा का सारा वो होल्ड करके रखती थी, उसको लगता नहीं बचा लूं बचा लूं बचा लूं। तो बचाना जब चाहोगे ना आप, वो रास्ता ढूंढ लेता निकलने का। कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसा कुछ चोरी हो जा सकती, उनके घर में चोरी हो गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई बीमारी आ जाएगी जिसके कारण आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा वहां से। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज advised to give first to receive in abundance. So tithing का कॉन्सेप्ट जो है, इसको हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग अपने आप से जितना भी हमारा हो सके, चाहे जैसे मैम हमेशा हमें सजेस्ट करती हैं, एंड ये मैंने मैम के बोलने के बाद से शुरू किया है, कि कभी भी कोई भी आता है ना, उसको एक्स्ट्रा देने की हम लोग कोशिश करें। हम लोग पहले थोड़ा अमाउंट देते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हाथ और खुला कर दिया। जितना हाथ खुला करेंगे ना, उतना ज्यादा भगवान आपको, आपका हाथ खुलता है ना जब औरों को देने के लिए, आपका हाथ भगवान की लेने के लिए उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, वो आपको उतने ही अबंडेंस में देता है। तो हमारे अपने ऊपर है कि हम अपना कितना ज्यादा अबंडेंट है हम लोग, और कितने ज्यादा वी आर ओपन टू रिसीव द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। वी हैव टू ओपन आवर हैंड्स, वी हैव टू ओपन आवर माइंड टू रिसीव, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू गिव फर्स्ट। पहले थैंक यू देना है, पहले कोई भी चीज देनी है, तभी हम लोगों को वो मिलेगा। तो भारतीय हम लोग पढ़े कहाँ से, तो वही यही है कि हम लोगों को ये करना है, एंड वी मस्ट हैव दिस विजन। कहाँ थे हम लोग? A woman came to me. Okay, fine. A woman came to me. A woman came to me asking me to speak the word for a position. So I demanded, Infinite Spirit, open the way for this woman's right position. Never ask for just a position. Ask for the right position. The place already planned in divine mind, as it is the only one that will give satisfaction. I then gave thanks that she had already received and that it would manifest quickly. Very soon, she had 3 positions offered her, 2 in New York and 1 in Palm Beach. And she did not know which to choose. I said, ask for a definite lead. The time was almost up and was still undecided, when one day she telephoned. When I woke up this morning, I could smell Palm Beach. She had been there before and knew its balmy fragrance. I replied, well, if you can smell Palm Beach from here, it is certainly your lead. She accepted the position and it proved a great success. Often one's lead comes at an unexpected time. One day, I was walking down the street when I suddenly felt a strong urge to go to a certain bakery, a block or 2 away. The reasoning mind resisted, arguing, there is nothing there that you want. However, I had learned not to reason, so I went to the bakery, looked at everything, and there was certainly nothing there that I wanted. But coming out, I encountered a woman I had thought of often and who was in great need of the help which I could give her. Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. George Bernard Shaw. So often,
Yes, one thank you so goes. much, Bharti. इतना ही पढ़ते हैं हम लोग. Okay, thank you so इतना ही much. पढ़ते हैं. It's already 7:09. Thank you so much for reading and thank you for bearing with this. Thank you Thank you so so much. much. So yeah. So यहाँ पर क्या बता रहे हैं फ्लोरेंस कोवलिशियन that one person she said that the vision and action must go hand in hand. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलते तो कुछ और हो लेकिन करते कुछ और हो. You must act according to what you say. You must walk the talk. Whenever you are listening to something, you are listening to some person and you're saying that wow, this is so good, I'll apply it, then application is most important. आप पढ़ रहे हो कर रहे हो लेकिन अप्लाई कैसे कर रहे हो. So your vision जो है आप जो करना चाहते हो, जस्ट सपोज you want to get into certain body weight. आप उस बॉडी वेट में जाना आपका, यू वांट टू अचीव अ सर्टेन वेट, जस्ट सपोज यू वांट टू हैव 55 kgs ऑफ वेट, ठीक है. लेकिन आपका नेचर क्या है उसके लिए, आप अभी 80 kgs के हो, आप 55 करना चाहते हो, आपने विजन तो देख लिया, आपने सपना तो देख लिया, आप विजुअलाइज भी अपने आप को कर रहे हो, लेकिन व्हाट इज योर एक्शन? आर यू स्टिल टेकिंग द जंक फूड्स? क्या आप खा रहे हो खाना वैसा वैसा वाला? क्या आप बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हो? क्या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? सो आपका एक्शन जो है, आप क्या करोगे? इफ यू वांट टू रीच व्हाट विल बी डूइंग, यू विल बी कॉन्शियसली आप हेल्दी खाना खाओगे, कॉन्शियसली आप अपने पोर्शन साइज का ध्यान रखोगे, कॉन्शियसली आप एक्सरसाइज करोगे. तो जब कॉन्शियस माइंड से आप इतने एफर्ट्स जब करोगे, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें फिल्टर होके जाएंगी. तब दैट विल बी इक्वल टू विजुअलाइजेशन प्लस यू आर टेकिंग द एक्शन. You must take the inspired action in order to reach there. This is very important. So उन्होंने कहा था, जैसे वो फरलाइन ओवरकोट का एग्जांपल आया था ना, वो पर्सन गरीब था लेकिन उन्होंने जाके अपनी वाइफ से बोला कि मुझे तो यही खरीदना है. तो उसकी वाइफ को लग रहा था बट कि भाई इतना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत, उसके पास शायद $1,000 थे बस अपने फैमिली का गुजर बसर करने के लिए. एंड दैट फर कोट वाज कॉस्टिंग अराउंड $700. तो फिर भी उन्होंने वो खरीदा, और जैसे ही उन्होंने वो खरीदा, शायद वही चीज शायद बाकी थी, उसके बाद उनके लाइफ में एकदम फटाक से अबंडेंस आने शुरू हो गई, है ना. तो लॉटरी उनकी लग गई थी उसके बाद. तो इसी तरीके से हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा. इफ यू आर स्टडिंग दैट यू शुड मस्ट गिव ग्रेटिट्यूड इन ऑर्डर टू रिसीव इट, देन वी मस्ट फॉलो इट इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ. दैट इज व्हाट इम्बाइबिंग द स्टडी. यही को इम्बाइबिंग कहते हैं. दिस इज व्हाट लिविंग द लाइफ. It's not just about writing and doing the practice, it is about living the practices. This is what the thing is. Then उन्होंने एक वुमेन उनके पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए, आप मुझे ना एक अच्छी पोजीशन दिलवा दो. आज जस्ट सपोज आपका बच्चा आपको आके कहे मुझे ना अपने क्लास में पोजीशन चाहिए, लेकिन यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि क्या पोजीशन चाहिए, राइट. आप पोजीशन तो आपकी वो लास्ट पोजीशन भी तो हो सकती है ना. क्लास में 35 बच्चे हैं, आपका बच्चा आके लास्ट, अगर आप एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए आपका, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आपका जो प्रेयर है. आपको बताना है कि मुझे कौन सा पोजीशन चाहिए, मुझे राइट पोजीशन चाहिए. यहाँ पर उन्होंने बोला आई वांट टू टेक द राइट पोजीशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर इट इज. व्हेन योर किड कम्स और व्हेनेवर यू वांट टू टेक go somewhere, then you must go tell the universe that I want to go here. Specifically you want to specify that thing. जितना ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा ना आपका जो प्रेयर है, वो भगवान को देने में वैसी सुविधा होती है ना. कि आप ऐसे कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट अगर बोलोगे आई वांट सक्सेस, then in what area you want success? You want success in your career? Okay, I'm giving it to you. Universe will say that. But you have to specifically say that कौन सा सक्सेस चाहिए आपको, क्या चाहिए. क्या आपके रिश्तों में सक्सेस चाहिए कि आप जिस भी इंसान से बात करो वही इंसान आपका फैन हो जाए, वैसे वाला सक्सेस चाहिए. क्या आपको हेल्थ में सक्सेस चाहिए कि आपकी हमेशा हर बार आपके मेडिकल रिजल्ट जो है, आपके रिपोर्ट बिल्कुल चकाचक आए, क्या वो वाला सक्सेस चाहिए? कैसा सक्सेस चाहिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा. व्हाट सक्सेस एक्चुअली मीन्स टू यू, राइट. सो देन दिस एंड she said कि मुझे अच्छी पोजीशन के लिए स्पीक द वर्ड, मतलब है कि एफर्मेशन, कि आप क्या, मतलब मुझे कौन सा एफर्मेशन दोगे. आई वांट टू हैव अ पर्टिकुलर पोजीशन. तो उन्होंने कहा था कि इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वे फॉर दिस वुमन्स पोजीशन. उसने खाली पोजीशन बोला, बट फ्लोरेंस कोवलिशियन ने क्या ऐड किया, राइट पोजीशन, है ना. राइट पोजीशन क्या होगा भगवान, वो आप करके वो आप करो. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे मान लीजिए कहीं पर अकाउंटेंट हो और यू वांट टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द सीईओ ऑफ द कंपनी, देन यू हैव दैट विजन. आप यूनिवर्स से प्रे करोगे आई वांट द राइट पोजीशन. अदरवाइज आपने स्पेसिफिकली अगर मान लीजिए आपको ऐसा टसल करोगे आप, लेकिन उसमें ना आपका डेस्परेशन नहीं होना चाहिए. वो डेस्परेशन वाला एटीट्यूड आएगा ना, डेस्परेशन इज अगेन अटैचिंग योरसेल्फ टू दैट.
अगर आप अटैच कर लोगे उस पर्टिकुलर आउटकम से अपने आप को, अटैच करने से वो चीज फिर आपका रेजिस्ट करेगा, वो आपको नहीं आने देगा. यू हैव टू ऑब्जर्व रेजिलियंस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस. वो रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, रेजिलियंस आना चाहिए आपके अंदर. कोई भी चैलेंज आएगा उसको मैंने टैकल करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस. बट रेजिस्टेंस आएगा जब आप उसके साथ अपने आप को अटैच कर लोगे, आप डेस्परेट हो जाओगे उस चीज के लिए. डेस्परेशन ऑलवेज रिपेल्स यू फ्रॉम द यूनिवर्स. इट विल बी एक्टिंग एज अ रिपल्सिव मटेरियल. रिपल्शन आएगी. रिपल्शन का मतलब आप दूर दूर कर दिया जाएगा आपको. इंस्टेड ऑफ दैट आपने अपनी प्रेयर करी, आपने अपने 555 की प्रैक्टिस करी. फ्लोरेंस कॉवल्शन के हिसाब से आपने 100 दिन लिखा था वो एफर्मेशन, बिल्कुल 7 दिनों तक कंसिस्टेंटली किया था. उसके बाद सरेंडर कर दो. सरेंडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट डेस्परेशन इज नॉट इज नॉट कमेंडेबल हियर, इज नॉट सजेस्टेड कि डेस्परेशन हो आपका. आप हालांकि आप अपने स्पेसिफिक पोजीशन के लिए करोगे, लेकिन आप डेस्परेट नहीं होगे उस चीज के लिए. आपको पता है कि मैं कर रही हूँ. यू मस्ट हैव फेथ इंस्टेड ऑफ हैविंग फियर कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं. फेथ लाओ कि मैंने बोल दिया ना तो हो जाएगा. It must have that uttered faith, है ना. So then she said that I then gave thanks. She had already received it. पहले उन्होंने वो एफर्मेशन किया और उसके बाद उन्होंने रिसीव कर लिया. यानी कि रॉन्डाबन क्या बोला हुआ है, रॉन्डाबन ने यही बोला है कि गिव करो पहले, है ना. इन्होंने भी यही बोला है कि गिव करो पहले. तो देन शी गेव थैंक्स. तो यहाँ पर रॉन्डाबन आई ना ग्रेटिट्यूड को लेकर. तो यहाँ पर इसीलिए हर पोजीशन में, हर पॉइंट में हमें आके पता चलता है कि हम मैजिक को क्यों साथ साथ पढ़ते हैं. दिस इज व्हाट रॉन्डाबर्न ने बता रखा है कि हमें ग्रैटिट्यूड कैसे करना चाहिए. तो ग्रैटिट्यूड करने का तरीका, जैसे वो टूल्स हमें बताए हैं, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि आपको जो भी एफर्मेशन चाहिए, जो भी आपका गोल है, उसको अचीव करने से पहले ही आप थैंक यू बोल दो यूनिवर्स को. आप उसमें अपनी सीट बुक कर लो अपनी बस में. वो जो सीट आप बस में जिस ट्रैवल करने वाले हो उसमें आपने पहले से बुकिंग करवा ली कि ये तो भाई मेरी सीट है. यूनिवर्स को पहले ही बता दिया कि आई हैव ऑलरेडी गॉट दैट. तो जब आपके पास वो है तो यूनिवर्स विल से तथास्तु टू यू, है ना. सो बी इट. इसी तरीके से करना है हम लोगों को. कोई भी हमारी एफर्मेशन होती है, कोई भी गोल होती है, उसको पहले से ही हम लोग थैंक यू बोल देते हैं इन एडवांस, एंड देन अगेन वी स्टे इन द गुड फीलिंग जोन. तब हमारे पास वो चीजें आ जाती हैं. तो अब रॉन्डाबर्न ये फ्लोरेंस कॉवल्शन ने उनको ये बताया कि उसके बाद जो है आपको ये चीज तो मिला. तो ऐसा करने से ना उस लेडी के पास 3 अपॉर्चुनिटीज आ गई. बहुत बड़ी बड़ी 3 अपॉर्चुनिटीज आ गई. अब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज में से चूज करना भी मुश्किल होता है. तो अगेन उन्होंने बोला है चूज करने से पहले आस्क द यूनिवर्स अगेन कि व्हाट इज द राइट थिंग, है ना. आपको इंट्यूशंस तभी आएंगी. इसीलिए इस चैप्टर का नाम इंट्यूशन है ना. आप जब अपने आप को उस जोन में रखोगे, आप जब क्रिएटर की कुर्सी पे बैठोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन करोगे, या फिर आप अपने यूनिवर्स से रात को सोने से पहले पूछोगे, तब आपके पास वो आंसर्स आएंगे. यू हैव टू वेट फॉर द लीड्स. लीड्स का मतलब क्या है कि यू हैव टू टेक द एक्शन व्हेन यू आर गेटिंग दैट लीड फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स विल गिव यू एनीथिंग एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ इंट्यूशन. ड्रीम में आ सकता है, किसी पर्सन से बुलवा सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, देख रहे हो सकता है फोन पे कुछ आपने देखा और आपसे उसको इंट्यूशन मिला कि मुझे ये करना है. आपको लीड जरूर मिलेगा. यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू दैट. यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट जोन इन ऑर्डर टू प्रेजेंट जो टाइम है, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर तभी आप उस इंट्यूशन को कैच कर सकते हो, वरना नहीं पता चलेगा आपको. यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू सोल्यूशन टू दैट, है ना. तो वो आप वो करो इसको. तो इन्होंने जब किया ना दैट शी वांटेड टू बाय समथिंग, तो शी वांटेड टू हैव समथिंग, कोई जॉब था, वहां पर उसको 3 अपॉर्चुनिटीज मिल गई. अब 3 अपॉर्चुनिटीज में से उनको वैसे ही क्या हुआ ना, किसी ने कुछ बात बोली तो उनको, जैसे मान लो अभी से अभी आपको ना कुछ खुशबू आनी शुरू हो गई, उसको ना पाम बीज की खुशबू आनी शुरू हो गई. वो जो पाम का जो फ्रेग्रेंस होता है वो आना शुरू हो गया. तो अब उसने अपने आप को वो जो जहां से जिस भी कंपनी से या जिस भी जगह से वो वाला ऑफर आया था ना, तो वहां पर जाके उन्होंने करा ज्वाइन. तो ये इंडिकेशंस, ये इंट्यूशंस वो स्मेल तभी कर पाई ना जब वो प्रेजेंट मोमेंट में थी. अगर वो यहाँ रह के कल परसों की बातों को सोचती रहती, 20 साल पहले क्या हुआ है वो सोचते रहते, तो उनको वो खुशबू आते ही नहीं. आपको पता है आपके सेंस ऑर्गन्स भी काम नहीं करते ढंग से जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो, नहीं करते काम. आपके हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती है जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो. मैंने देखा है ना कि आपके जो फिंगर प्रिंट्स है ना वो भी नहीं आते हैं. आप फिंगरप्रिंट करने जाओगे, जैसे आजकल वो डिटेक्टिंग सिस्टम है ना जो आपका, वो आपके फिंगरप्रिंट्स को आप कैच ही नहीं कर पाएगा इफ यू सो मच स्टे इन द नेगेटिव जोन. सो ग्रैटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग. सो सी आपको वो स्मेल आएगा, आप वो इंट्यूशन को तभी कैच कर पाओगे जब आप पॉजिटिव जोन में रहोगे, जब आप अटेंटिव रहोगे, जब आप क्यू द मैजिक करते रहोगे, राइट. तो ये है कि हमेशा कुछ भी काम शुरू करने से पहले आप यूनिवर्स से पूछो, किसी और से पूछने के बजाय कि व्हाट इज दिस करेक्ट फॉर मी. आप पूछो, आपको गाइडेंस मिलेगी जरूर.
वही है। तो इन्होंने फिर फ्लोरेंस स्कोविल ने अपना भी एग्जाम्पल दिया है कि एक बार वो उनका मन हुआ, मतलब उनको कुछ भी लेना नहीं था किसी शॉप से, उनको कुछ भी लेना नहीं था, इट वॉज अ बेकरी शॉप एंड शी डिड हैव एवरीथिंग, उनको कुछ लेना नहीं था, बट स्टिल शी वेंट देयर, मतलब देयर वाज सम गट इंस्टिंक्ट दैट शी फॉलोड एंड शी वेंट टू दैट बेकरी शॉप। पता नहीं कैसे गई, कहते मुझे तो कुछ भी लेना नहीं है। तो वहां पर दुकान में जाकर भी उधर उधर देखती है तो कहते क्या लूं, मतलब मुझे तो कुछ भी लेना नहीं है। शी वाज कंप्लीटली कंफ्यूज दैट व्हाई शी इज इवन हियर। देन देयर शी नोटिस कि वो कोई पर्सन था वहां पर, उनकी कोई फ्रेंड थी जिनको वो बहुत दिनों से मिली नहीं थी, और वो फ्रेंड वहां पर गई हुई थी और उस फ्रेंड को उनकी जरूरत थी। तब उनको पता चला कि यस दिस इज द रीजन आई एम हियर। So everything in this universe, everything happens because there is reason attached to it. कोई भी चीज बिना वैसे किसी रीजन के नहीं होती है. Everything happens because of reason. Nothing is coincidence here. So it was not a coincidence she went there. It was just because that lady might be seeking Florence Scovel Shinn. इस कारण से वो वहां पहुंची. उसने वाइब्रेशनली उस लेडी को वहां पर बुलाया, और उनकी वाइब्रेशनली जब उन्होंने बुलाया तब फ्लोरेंस स्कोवेल शिन, जिनको कोई काम तो था नहीं वहां पर, फिर भी वो वहां गई क्योंकि उस लेडी ने पुकारा था उनको, वाइब्रेशन उनकी वहां तक पहुंची थी. दिस इज व्हाट यूनिवर्स इंट्यूशन इज. अगर मैं खोई खोई अपनी बातों में रहूंगी तो मैं यूनिवर्स के इंडिकेशन को बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी कि यूनिवर्स क्या बताना चाहता है. अब आज मेरे साथ ये हुआ इन द सेंस कि नेटवर्क का इतना इशू रहा, इसका सीधा साधा जागता सबूत मुझे पता है कि क्या कारण है उसका होने का. उसको रिजॉल्व करते ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज माई माइंड नाउ इज इन द प्रेजेंट मोमेंट. आई एम अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई माई मशीन इज गेटिंग लॉक्ड ऑफ, राइट. सो दिस इज व्हाट आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है. क्यों कैच करने की जरूरत पड़नी है. किसी इंसान ने आपके साथ बुरा भी किया तो भी उसमें से क्यों लो, क्यों ये चीज क्यों हुआ, है ना. वो जो क्यों हुआ है, वो क्या हुआ है, उस पे ऊपर फोकस करो आप. और कैसे हुआ वो उस पे नहीं करना. इफ यू वांट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू डू नॉट हैव टू थिंक कि कैसे आएगा आपके पास. यूनिवर्स इज देयर ना, यूनिवर्स इज गिफ्टिंग यू एवरीथिंग. तो आपको अपने कर्म करते जाना है. दैट इज व्हाट. एक्शन आप लेते रहोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, अपना विजन स्ट्रांग रखोगे, तो आपको कोई भी चीज नहीं है ऐसे जो आपको नहीं मिलेगी. बस इन ऑर्डर टू, वेरी इंपॉर्टेंट इज, इन ऑर्डर टू रिसीव दैट इंट्यूशन यू हैव टू स्टे इन द पॉजिटिव जोन, इन द गुड फीलिंग जोन एंड इन द प्रेजेंट मोमेंट. और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को भी डीक्लटर करने का, अपने फोन को डीक्लटर करने का, कि गिव इट टाइम. उसको टाइम दो ठीक होने का. रीस्टार्ट इट, है ना. कभी भी कुछ रीस्टार्ट करो. हम क्या करते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड एक तरह से रीसेट हो जाता है. तो रीसेट करके उसमें से क्लटर्स धीरे 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 करके कम होने लग पड़ते हैं. तो वो जब कम होंगे तभी आपको वो इंस्पायर्ड एक्शंस आएंगे, तभी आप इंट्यूशंस आएंगे, और फिर आप इंस्पायर्ड एक्शन लोगे उसके अगेंस्ट. यही है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, यही मैंने. और ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोट है यहाँ पर, बेटर कीप योरसेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो थ्रू विच यू मस्ट सी द वर्ल्ड. अपने आप को, अपने दिमाग को जब तक हम लोग डीक्लटर्ड नहीं रखेंगे ना. आप लोगों को पता होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है बहुत ही बेहतरीन लिटरेचर के वो फिलोसोफर भी हुआ करते, लिटरेचर के भी थे वो. उनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे. और आप सोचो कि कितने इन्होंने उनका भी नाम यहाँ पर, और उनके बारे में एक बहुत ही मजाक की बात कही जाती है कि ही वाज, एवरीवन वाज सो फॉन्ड ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉज इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट कि मैडोना जो है ना, उन्होंने उनको ऑफर किया था कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों अगर शादी करेंगे तो हमारे बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट होंगे, तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे और मेरे जितने खूबसूरत हो जाएंगे. तो मैडोना वाज ब्यूटीफुल, नो. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब अगर इसका उल्टा हो जाए तो, है ना. तो अगर मान लो, नॉट मेडोना, इट वाज आई थिंक मर्लिन, तो उनको उनके मोनरो की बात हो रही है शायद. तो उन्होंने उनको कहा कि अगर इसका उल्टा हो जाए तो, कि मेरी शक्ल मेरे पर चले जाए और जो है दिमाग तुम्हारे ऊपर चले जाए तो. इट वाज अ जोक ऑफ कोर्स, बट इट वाज लाइक दैट कि अगर उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का उन्होंने यहाँ पर कोट किया है कि बेटर कीप योरसेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो. आप अपने आप को जब सुलझे रखोगे, आप अगर अपने आप में आपके डीक्लटर्ड आपका माइंड जब रहेगा, तब आप दुनिया को उस नजर से देख पाओगे. बिकॉज यू आर द रिफ्लेक्शन, द आउटसाइड वर्ल्ड is just your reflection. You have to understand that in each and every step of life, that outside world is just my reflection. कभी भी कुछ भी हो रहा है because it has to happen in order to teach me something. It has come to teach me something. Everything is the teacher. चाहे वो कोई पर्सन हो आपके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सभी के सभी आपके टीचर है. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो आपको अप्रिशिएट करके बताते हैं, वाओ ब्रिलियंट, है ना, आपके बैक को पैट करते हैं. कुछ टीचर्स आपको डांट लगाते हैं. तो वो जो डांट लगाने वाले टीचर्स होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमें और भी परिपक्व बना रहे हैं, हमें और भी ज्यादा अच्छा इंसान शायद बना रहे हैं उस चीज में. सो या दिस इज व्हाट फ्रॉम दिस चैप्टर. एंड कल हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे यहाँ से. थैंक यू सो मच.
for listening to me. Thank you to Bharti for reading so wonderfully, and thank you to Meetu ma'am for, coming for the rescue. So our rescue team is very strong, no? Thank you so much. And जैसे कि पूनम मैम ने रेस्क्यू किया ना, वो नेटवर्क नहीं चल रहा था, पूनम मैम ने बोला कि यार मैं करती हूँ, like I start the prayers, then you do the thing. So this is what the rescue team. This team is the world's best team actually. When everyone is working for the same goal and giving each and everything, like अपना contribution करके हम लोग कैसे we are making it all work, right? And despite this is not किसी का भी ये जो है कॉमन वो मेन काम नहीं है, सबके अलग अलग काम है, लेकिन स्टिल वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू मेक इट हैपन, टू मेक इट वर्क फॉर द पीपल, फॉर अस. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एंड आई लव इट. Thank you so much. So yeah, thank you so much. Phenomenal session, Riya Didi. Thank you so Wonderful much. session. Amazing. Thank Yes, you, amazing. thank you so much, Poonam ma'am. Thank you, for being Priya. the rock solid Priya. Poonam मैम ने जब Thank प्राइस you, चढ़ानी thank शुरू की you. ना तो लाइव शुरू हो चुका Thank you, था. Biti. Thank you, Priya. Very Priya, much. thank you so much. Poonam, thank you for your Thank you. prayers. Thank you. Yeah, Thank you, love you so Poonam ma'am. much. Thank you. Love you all. Love Thank you you so all. much, Thank Deepti you. ma'am, for connecting us and for tying us into this one single thread of gratitude. Thank you so much to ma'am. So lots of blessings and lots of love to Honorable Deepti ma'am, and thank you to each and every person who is spreading the word of love and gratitude. Each and every day I get this request that please send the link so that we can add more people, and people who are liking the Insta reels and the YouTube videos. I bow down upon you and thank you so much for doing this, because this is what we know, this is what we mean, this is what we are here for, है ना? जो ये चीज है, जो कंपैशन है, जो स्प्रेडिंग द जॉय एंड ग्रैटिट्यूड है, ये जो सीक्रेट लोगों को बताना है, ये तभी हो पाएगा when we actually do it and when we practice it. सिर्फ हमारे प्रैक्टिस करने से ही और लोगों को पता चल जाएगा. When you will walk the talk, ना, everyone will come into this journey and they'll enjoy this journey, because everyone has got this right to enjoy the journey, enjoy the life to the fullest. This is what. Yeah, thank you so much, everyone. देगा, डोज देगा, खाएगा तो पूछ लेगा. हाँ, ये okay. Bharti, yes. Yes, just wanted to add something for everyone. We all are actually extremely grateful to you, to Deepti ma'am. So, energy exchange का सबसे बड़ा मुझे लगता है जो हम कर सकते हैं, we can share the links with more and more people through WhatsApp, through Insta or whatever, so that and don't go in that कि उसने join Your नहीं किया, voice is not audible, ma'am. या तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा. Just do your duty, share it again and again, and a day comes. Like evening में पूजा आती है, प्रिया आप जानते हो उनको, मैं उन्हें 2 साल से शेयर कर रही थी और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया, तो अब वो इतनी कंसिस्टेंट है कि वो एक भी दिन क्लास मिस नहीं करती हैं. बट इट वाज लाइक कि उनको अगेन एंड अगेन मैं उस चीज के लिए रिमाइंड करती थी विदाउट थिंकिंग कि ये ज्वाइन नहीं कर रही, मैं बार बार लिंक भेजती हूँ लोगों को. सो दिस इज व्हाट आई गेस एनर्जी एक्सचेंज जब हम करते हैं तो एक गुरु दक्षिणा कह रहे हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा यही हो सकती है कि वी कैन स्प्रेड. जैसे अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा लिंक्स को फिर से स्प्रेड कर सकते हैं. Thank you so much. Of course, Bharti, such lovely thought. Thank you so much. Yes, this is what, spreading the word, spreading the secret that we know must go to the world. Now, this is the intention of Rhonda Ban also. Rhonda Ban also spread this intention and sent it to the millions, and this is ma'am's intention also. Each and every one of us, when we are enjoying this fruit, this love of gratitude, then why not other people also come and join in and enjoy and savor this love, right? So yes, this is what. सभी को खूब सारा थैंक यू. एंड आप सभी कर रहे हो, ये जेनरसली कर रहे हो लिंक्स को शेयर, एंड उतना ही जेनरसली हम लोगों को ये नहीं सोचना कि वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. उनका जब टाइम आएगा ना, वो अपने आप आएगा. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू इम्बाइब दीज प्रैक्टिसेस एंड यू चेंज योरसेल्फ. देन यू सी दैट पीपल विल फ्लॉक अराउंड एंड विल एवरीवन विल बी एंजॉयिंग द स्टडी एंड एवरीवन विल बी जॉइन when whatever you enjoying the thing that is changing your life must. कि अगर हम लोग लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे या किसी भी चैनल, किसी भी प्लेटफॉर्म में, अगर हम लोग लिंक शेयर करते हैं, तब वो चीज उनके पास जाती है, लोगों के पास, तब लोगों की लाइफ चेंज होती है. उससे दिस इज जस्ट लाइक अ चेंज. आपने किया, वो आपने लोगों को बताया, उनको लोगों को बताया. दिस इज व्हाट दिस ब्यूटीफुल चेन गोज. Thank you so much.
Thank you, Bharti. Lovely thought. Yes, I think that it's all for now. That's all. And thank you so much for. भारती मैम आप बंद कर दीजिए। Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Really, thank you so much. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Have a Thank you beautiful. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, thank you, everyone. Thank you everyone. क्या कह दिए? पैरों में ठंडी लग रही, स्किन पे सॉक्स है। नहीं, सॉक्स हैं फुल। Bharti, Betty ji, I actually can't end the session. I think Priya only has to do it because co-host नहीं कर सकता end session. हाँ जी, मैं प्रिया को कॉल करती हूँ। हाँ जी, मैं भी वेट कर रही हूँ ताकि मतलब एक अभी लीव नहीं करा तभी मैंने। प्रिया सेशन क्लोज करो ना, वो स्क्रीन पे सारे लोग अभी तक हैं। नहीं, आपने एंड नहीं किया। नहीं, अभी नहीं हुआ। पूनम मैम भी वेट कर रहे हैं, बोलते हैं कि वो फिर नहीं तो बेटी जी ऐसे करती हूँ, मैं बन जाती हूँ होस्ट। ठहरिए, मैं बन जाती हूँ और मैं फिर कर देती हूँ। अच्छा, पूनम मैम कह रहे हैं वो होस्ट बन के कर लेंगे। हाँ, पर मुझे 5 मिनट 2-3 मिनट लगेंगे बिकॉज मैंने अभी सेटिंग चेंज करी थी और मेरे को फिर मैं भी कर देती बस 2 मिनट में। हाँ जी, ठीक है। शी ऑल्सो ट्राइंग मैम। कोई बात नहीं, आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स। उनका थोड़ा सिस्टम थोड़ा तंग कर रहा है। हाँ नहीं, मेरे को 2 मिनट ही लगेगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैंने कर लिया वो।